صدیوں سے انسان مانتا آیا ہے کہ روئے زمین پر جو کچھ موجود ہے، انسان، حیوان، آبی حیات اور چرند پرند، سب کو خدا نے شروع سے ایسی ہی شکل میں پیدا کیا جس شکل میں یہ آج پائے جاتے ہیں۔ اور کچھ مذاہب کا ماننا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی ہی شکل میں پیدا کیا۔ درست یا غلط یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ سب مذہبی بیلیفز ہیں اور ان بیلیفز کو کریشن سائنس، کریشنزم یا انٹیلیجنٹ ڈیزائن کہتے ہیں، لیکن سائنس اس کے بالکل برعکس بات کرتی ہے۔ ایوولوشن کیا ہے، اس پر کون سی مختلف تھیوریز پیش کی گئیں اور وہ تھیوریز کیا کہتی ہیں، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، سب سے پہلے ہم سادہ الفاظ میں جان لیتے ہیں کہ تھیوری، لا اور فیکٹ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق فیکٹ سے مراد وہ حقائق ہیں جن کی بنیاد پر انسان کوئی تھیوری قائم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دن اور رات کا ہونا، سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہو جانا، مختلف موسموں کا آنا جانا، یہ سب فیکٹس ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ زمین اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ایک تھیوری ہے۔ نو ڈاؤٹ جدید دور میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ سائنٹیفک تھیوری کسی فینومینا کی براڈر سینس میں ایکسپلینیشن کو کہتے ہیں جو فیکٹس کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ نئے فیکٹس سامنے آنے پر کوئی تھیوری تبدیل یا ریجیکٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک سائنٹیفک پروسیس ہے۔ ایک تھیوری میں بہت سے لاز ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں بہت سی تھیوریز ہیں جن کی کریڈیبلٹی پر کسی کو کوئی شک نہیں۔ مثال کے طور پر تھیوری آف ریلیٹیوٹی، سیل تھیوری، ایٹمک تھیوری، بگ بینگ تھیوری، کوانٹم تھیوری اینڈ مینی مور۔ تھیوری کے برعکس لا کسی فینومینا کی نیرو ایکسپلینیشن ہوتی ہے اور اس میں ویریبلز بھی بہت کم ہوتے ہیں، جیسے نیوٹنز لا آف یونیورسل گریویٹیشن میں 5 ویریبلز ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سائنٹیفک لا ایک یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ٹاپک پر الگ سے ایک ویڈیو بن سکتی ہے۔ اگر آپ اس ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیں۔ ایوولوشن سے مراد ارتقاء ہے، یعنی ہر جاندار قدرتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اپنے رنگ، جسامت اور انٹرنل باڈی پارٹس میں تبدیلیاں کر لیتا ہے، اور یہ عمل مہینوں یا سالوں پر نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں سالوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایوولوشن کے بارے میں سب سے پہلے گریک فلسفر انیکزیمینڈر نے کہا کہ انسان سمیت تمام جاندار پانی میں موجود جانداروں سے بنے ہیں اور انسان مچھلی سے بنا ہے۔ اس کے بعد ارلی 19 سینچری کے ایک فرینچ بایولوجسٹ جان بیپٹسٹ لامارک نے اپنی کتاب فلسفی زولوجیک میں اپنی تھیوری آف ایوولوشن پیش کی، جسے لامارکزم کہا جاتا ہے، جس میں اس نے ایوولوشن کے 2 پرنسپلز بتائے۔ نمبر 1، پرنسپل آف یوز اینڈ ڈس یوز، یعنی کسی بھی جاندار کے آرگنز اس کے استعمال کرنے یا نہ کرنے پر بڑھتے یا کم ہوتے ہیں یا پھر بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک جراف جو کہ درختوں کے پتے کھاتا ہے، اگر درخت لمبے ہو جائیں تو جراف کو بھی اپنی گردن لمبی کرنا پڑے گی۔ یاد رہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایوولوشن کا عمل ہزاروں لاکھوں سالوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ لامارک کا پرنسپل نمبر 2، پرنسپل آف انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کریکٹرسٹکس، یعنی جو ٹریٹس یوز اینڈ ڈس یوز سے ایک نسل نے حاصل کیے وہ اگلی نسل میں منتقل ہو جائیں گے، اور اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلیوں کے مطابق یہ ٹریٹس ڈھلتے جائیں گے۔ لامارک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیسٹ تھا، یعنی وہ اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ خدا نے کائنات بنائی اور اس کو فنکشن کرنے کے تمام تر اصول و ضوابط بنا دیے، اور اب کائنات خدا کے بنائے اصولوں پر چل رہی ہے، نہ کہ خدا ہر چیز کو پرسنلی یا مینولی تبدیل کر رہا ہے۔ جیسے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات کا ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، جبکہ ڈیسٹ اس کے بالکل برعکس کہتے ہیں۔ لامارک کی تھیوری کو زیادہ اہمیت اس وقت حاصل ہوئی جب 1859 میں ڈارون کی کتاب آن دی اوریجن آف اسپیشیز بائی مینز آف نیچرل سلیکشن پبلش ہوئی، کیونکہ ڈارون کی تھیوری کے مخالفین نے یہ کہا کہ لامارک کی تھیوری اس سے بہتر تھی۔ یہاں پر آپ کے مائنڈ میں کچھ سوال ابھرے ہوں گے، آخر یہ ڈارون تھا کون؟ اس نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ اور اس نے اپنی کتاب میں ایسا کیا لکھا کہ پبلش ہونے سے لے کر آج تک اس پر بحث جاری ہے؟ 18ویں صدی کے آغاز میں انگلینڈ کے ایک ٹاؤن شروسبری کی ایک ڈاکٹر فیملی میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام چارلز ڈارون رکھا گیا۔ ڈارون کے والدین چونکہ ڈاکٹر تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے، اس لیے اسے میڈیسن کی اسٹڈی کے لیے یونیورسٹی آف ایڈنبرگ بھیجا گیا۔ لیکن ڈارون کو میڈیکل لیکچرز بورنگ لگتے تھے اور خون کو دیکھنا اس کے لیے ڈسٹربنگ تھا۔ اس وجہ سے
डार्विन ने मेडिसिन छोड़कर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में डिविनिटी की पढ़ाई शुरू कर दी, जहां उसकी दिलचस्पी नेचुरल हिस्ट्री में पैदा हो गई। वैसे भी डार्विन को मुख्तलिफ चीजों के स्पेसिमेंस कलेक्ट करने का बहुत शौक था, जैसे कि इंसेक्ट्स, रॉक्स, बीटल्स और फॉसिल्स। उन दिनों नए एक्सप्लोर होने वाले कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स और सी शोर्स की बाउंड्री मार्किंग, नक्शे बनाने और उन पर मौजूद हयात का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मुहिम्मात भेजी जाती थी, जिनमें मुख्तलिफ साइंसी उलूम के माहिरीन भी हिस्सा लेते थे। दिसंबर 1831 में इसी मकसद के लिए एक जहाज HMS बीगल कैप्टन फिट्ज रॉय की सरबराही में दुनिया के जर्नी पर जा रहा था। डार्विन के उस्ताद प्रोफेसर हेंसलो के कहने पर डार्विन भी उस जहाज पर बतौर नेचुरलिस्ट दुनिया के सफर पर चला गया। डार्विन ने इस सफर में 5 साल गुजारे, जिस दौरान उसने ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, फॉकलैंड आइलैंड्स, गैलापागोस आइलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ आइलैंड्स पर तहकीक की और उसने ऑब्जर्व किया कि कहीं कछुओं की गर्दन छोटी तो कहीं लंबी, कुछ फिंचेस की चोंच छोटी, कुछ की मोटी और कुछ की लंबी है, कहीं बंदरों की मुख्तलिफ इकसाम, किसी इलाके में एक जानवर था तो दूसरे में उसका नामो निशान भी न था। 2 मुख्तलिफ इलाकों में सेम कैटेगरी के जानदारों में कुछ खुसूसियात बिल्कुल मुख्तलिफ थी और ये सब तगय्युरात इंसानों में भी यकसां अयां थे। हत्ता कि डार्विन ने जमीन की ज्योग्राफी का भी मुशाहिदा किया तो उसे लगा जैसे जमीन की साख्त भी वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है। 1836 में डार्विन ने इंग्लैंड वापस आकर अपने सफर के तमाम तर शवाहिद और स्पेसिमेंस की रोशनी में अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखना शुरू की, जिसमें उसने पहली और बुनियादी बात ये की कि इस पूरे अर्ज पर मौजूद इंसानों समेत तमाम जानदारों का एक कॉमन एंसेस्टर था। यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आएगा कि एक कॉमन एंसेस्टर से इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, पेड़ पौधे और आबी हयात कैसे पैदा हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 4 बिलियन साल पीछे जाना पड़ेगा, जब कुरे अर्ज पर हर तरफ पानी ही पानी था। इसी पानी में जिंदगी की शुरुआत हुई, जैसा कि कुरान पाक की सूरह नूर की आयत नंबर 45 में है कि और अल्लाह ने जमीन पर हर चलने वाली चीज को पानी से बनाया है। साइंसदानों का कहना है कि शुरुआत में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बना होगा जिसका कोई सेल नहीं था, लेकिन उसमें एक जेनेटिक कोड था जो उसे इस काबिल बनाता था कि वो प्रोटीन्स बनाने के लिए RNA मॉलिक्यूल्स को पेप्टाइड्स में ट्रांसलेट कर सके। और आप जानते ही होंगे कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स से बनते हैं, जिन्हें बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। इस पहले ऑर्गेनिज्म को साइंसदान फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर यानी FUCA बुलाते हैं। बात सिर्फ फूका यानी FUCA की ही नहीं, बल्कि साइंसदानों का ख्याल है कि जिंदगी की शुरुआत इससे भी पहले हो चुकी थी, जिसे RNA वर्ल्ड कहते हैं। खैर, उस डिटेल में हम नहीं जाते। फूका के बाद लीस्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर यानी लूका वजूद में आता है करीब 3.5 to 3.8 बिलियन साल पहले। इसी लूका से जिंदगी की 3 बुनियादी शाखें निकलें, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया। कई मिलियन साल बाद यूकेरिया मजीद 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और फंजाई किंगडम। अभी तक हम जिन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे वो सिंगल सेलुलर थी, यानी उनमें एक सेल पाया जाता था। करीब 900 मिलियन साल पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का आगाज हुआ। साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक क्रीचर के फॉसिल्स मिले। साइंसदानों ने जब उसकी कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि ये क्रीचर करीब 555 मिलियन साल पहले जमीन पर पाया जाता था और इसका साइज चावल से भी छोटा था। इसका साइंसी नाम एकारिया वारियोटा रखा गया और साइंसदानों का मानना है कि तमाम जानवरों का कॉमन एंसेस्टर यही एकारिया वारियोटा था, क्योंकि इसमें बायलेटरल सिमेट्री थी। बायलेटरल सिमेट्री से मुराद जानवर की बॉडी की लेफ्ट और राइट साइड का सेम होना। आजकल पाए जाने वाले तमाम जानवरों में बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, सिवाय स्टारफिश के जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है। इसी तरह फिर वर्टिब्रेट्स का दौर आया, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स और 350 मिलियन साल पहले डायनासोर्स भी जमीन पर पाए जाते थे। ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में हम नहीं जाते। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई।
अब कहानी में आगे बढ़ते हुए हम ये जान लेते हैं कि आखिर इन जानदारों को ऐसी क्या पड़ी थी कि वो अपने अंदरूनी और बैरूनी स्ट्रक्चर में तब्दीलियां कर लेते थे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये फिक्रा तो आपने सुन रखा होगा। यहाँ पर फिट का मतलब ऐसी खसूसियात जो एक जानदार को अपने माहौल में रहने के लिए हेल्प करे। मिसाल के तौर पर एक सांप जो किसी सहरा में रहता है, अगर उसका रंग रेत की तरह भूरा नहीं होगा तो उसे आसमान में उड़ती चील आसानी से देख लेगी और दबोच लेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दरख्त लंबे क्यों होते हैं या सूरजमुखी का पौधा सूरज की मूवमेंट के साथ अपना रुख क्यों तब्दील करता है? क्योंकि पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। इसी तरह आपने ये फिक्रा भी सुना होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जानदार खुद को जिंदा रखने के लिए खुराक के हसूल के लिए स्ट्रगल करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते कि जिंदगी एक रेस है। जब आप इतनी बारीकी से मुशाहिदा करोगे तो जिंदगी आपको वाकई रेस लगेगी। खैर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। डार्विन ने कहा कि ऐसा सदियों से होता आ रहा है कि जानदार अपने माहौल के मुताबिक खुद को ढालते आ रहे हैं और ये खसूसियात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आ रही हैं। इसके बरक्स कुछ खसूसियात वक्त के साथ साथ माहौल या इलाके की तब्दीली की वजह से खत्म भी हो जाती हैं और इनकी जगह नई खसूसियात जानदार में शामिल हो जाती हैं। यहाँ पर इलाके में तब्दीली से मुराद जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से नए कॉन्टिनेंट, समंदर और दरिया बनना है। अब आपके जहन में यह सवाल आया होगा कि आखिर जानदारों में ये तब्दीलियां जेनेटिक लेवल पर कैसे आती हैं? जदीद रिसर्च के तहत न्यो डार्विनिज्म थ्योरी में इसकी कुछ बुनियादी वजूहात बताई गई है। सबसे पहली वजह है नेचुरल सिलेक्शन, जिसे डार्विन ने भी अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में डिस्कस किया। माहौल की वजह से जब एक जानदार कोई खसूसियात अडॉप्ट करता है तो वो खसूसियात उसकी जेनेटिक कोडिंग का हिस्सा बन जाती हैं और रिप्रोडक्शन के बाद वो खसूसियात अगली नस्ल में रेप्लिकेट हो जाती हैं, या जिन खसूसियात की जरूरत नहीं होती उन्हें रेप्लिकेट होने से रोक दिया जाता है। दूसरी वजह है म्यूटेशन। रिप्रोडक्शन के दौरान जीन्स रेप्लिकेट करते वक्त बाज दफा गलतियां हो जाती हैं और डीएनए सीक्वेंस में तब्दीलियां आ जाती हैं। तीसरी वजह है जीन फ्लो। ये इसी तरह है जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के जानदार एक इलाके से दूसरे इलाके में चले जाते हैं और वहाँ के जानदारों से मिलकर रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसके नतीजे में एक हाइब्रिड नस्ल सामने आती है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इंसानों की एवोल्यूशन की तो बात ही नहीं की। वैसे इंसान भी एक जानदार ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताएं। एक और बात, क्या आप जानते हैं कि डार्विन ने 20 सालों तक अपनी किताब पब्लिश क्यों नहीं की? क्योंकि वो उस वक्त के कैथोलिक चर्च से डरता था। जब 1858 में एक और ब्रिटिश नेचुरलिस्ट अल्फ्रेड रसल वालेस ने अपना पेपर पब्लिश किया जिसमें उसने नेचुरल सिलेक्शन की बात की, तो फिर डार्विन को लगा कि ऐसा न हो कि वालेस इस सारी रिसर्च का क्रेडिट ले जाए। उसने जल्दी से अपनी किताब मुकम्मल की और 1859 में पब्लिश करवा दी। कैथोलिक चर्च ने इसकी मुखालफत की, लेकिन काफी साल बाद ये कहकर एक्सेप्ट कर लिया कि एवोल्यूशन एक हकीकत है जो खुदा के हुक्म से होती है और खुदा ने आदम और हव्वा को स्पेशल तौर पर बनाया है। और हो सकता है बाकी इंसान इवॉल्व होकर आए हों, लेकिन सबके लिए रूहें खुदा ने स्पेशल तौर पर खुद बनाई। और अब कैथोलिक चर्च के साइंस करिकुलम में डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाई जाती है। आखिर में 2 सवाल जिनका जवाब अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पहला सवाल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 90 फुट था और आज का एवरेज इंसान 5.5 फुट का है। कहीं ये एवोल्यूशन तो नहीं? दूसरा सवाल, जिस तरह हमने अपने जहनी और जिस्मानी काम मशीनों पर डाल दिए हैं और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से इंसान और ज्यादा सहल पसंद हो जाएगा, आपको क्या लगता है हम इवॉल्व हो रहे हैं या माहौल में फिट? इट्स अप टू यू नाउ। वस्सलाम।